Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the third lecture of the Introduction to Management, MGT 101. In lecture number 2, if you remember, we discussed some of the topics from chapter number 1, which were what are the skills which managers require. We also discussed at that time what is an organization and why we are studying the management as a subject, and what is the universal need for management as a subject or body of knowledge. We also started to discuss the chapter number 2, which is on history of management, and one of the component that we covered in that lecture was about historical background, where we discussed the initial examples or early examples of management. And I think you remember that we discussed that the early examples of management are available to us from the pyramids which are there in Egypt, how they were manufactured, how they were managed, and that project was done even though there was not that much of machinery available at that time. So it's all about management, whereby managers, whatever sort of those managers were there at that time, were able to manage such a large workforce and getting the work done. Again, you remember, it's about getting the work done efficiently and effectively. We also discussed the contribution of Adam Smith, and we discussed that he introduced a concept of labor specialization, whereby not everyone is fit for every job. That means every labor must be classified according to the skills, according to the task, and according to the fitness for job. And then we discussed at that time that what is the contribution of industrial revolution which took place between 1715 and 1850. And we discussed at that time that industrial revolution, besides other things, introduced machines as one of the substitution for workers or laborers. So now let's see what we are going to discuss in today's lecture. Today we are going to discuss the topics from chapter number 2, and these topics include what is scientific management, what are general administrative theories, what is quantitative approach, what is organizational behavior as a concept, and then we will discuss what is a systems approach. Although we may discuss few of the topics of chapter number 2 in the next coming lecture, but these are the topics that we will be covering from chapter number 2 in this lecture number 3. So let's start. Chapter 2 is about management history, and the topic we are going to discuss in the start is scientific management. You see, scientific management is a concept which was introduced by Frederick Winslow Taylor, which is also known as F.W. Taylor, and he has been known as the father of scientific management. Now, F.W. Taylor published a very famous contribution which is now known as the Principles of Scientific Management. It was published way back in 1911. So let's see what this scientific management is all about. You see, F.W. Taylor or Frederick Winslow Taylor introduced the concept of theory of scientific management. He presented a theory whereby the theory states that it is about using scientific methods to define one best way for a job to be done. You see, Frederick Taylor believed that for every job, besides selecting the best person according to Adam Smith, it's also about selecting the best way of doing a job. For example, it could be an easy, as a very simple task. For example,
picking up a load from one point and taking it in a wheelbarrow to another point, that can be one of the very simple job. But again, picking a shovel in the right manner, putting it on the ground, picking up the load with that shovel in the right manner may be a kind of doing the job in a better way. Because if you take some steps which are unnecessary, at the end of the day you may not be able to do that much of job which was required by you, and you may end up in getting some kind of problems such as fatigue or other things. So scientific management is about identification of one best way of doing a job. Now further it says that when we talk about identifying the best way, or rather one best way of doing the job, it means number one, putting the right person on the job with the correct tools and equipment. You see, Frederick Taylor believed that job must be analyzed. Job must be analyzed from various perspectives, such as whether this person which we have appointed for this job is right person or not. यानी कि जो इन पर्सन हमने इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं, फिट है नहीं है, स्किल्ड है कि नहीं है. Then whether that person has a right tools and equipment or not. आपने उसको एक जगह से लेट्स से कुछ शवल के थ्रू कुछ लोड उठा के दूसरी जगह जाने के लिए कहा है, तो क्या उसके पास शवल है, क्या उसके पास व्हील बैरो है? अगर व्हील बैरो है तो क्या वो व्हील बैरो बिल्कुल ठीक है? कहीं उसके कोई व्हील्स ख़राब तो नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े. So when you talk about these principles, the first principle is that you need to make sure that the person which you have selected has the right tools and the right equipment. Then having a standardized method of doing the job. You see, scientific management requires that every job must be broken down into a set of elements. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट किया आपके सामने कि जी एक जगह से दूसरी जगह हमने शवल से पहले कुछ सामान या कोल फॉर एग्ज़ाम्पल उठाना है, उसको एक व्हील बैरो में डालना है और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके गिरा के तो फिर वापस आना है. नाउ इफ़ दैट इज़ वन ऑफ द जॉब, तो इसके जॉब एलिमेंट्स क्या है? शवल से लोड को, कोल को उठाना, व्हील बैरो में डालना दूसरा जॉब एलिमेंट है, व्हील बैरो को पिक करना तीसरा जॉब एलिमेंट है, चौथा जॉब एलिमेंट है उसको दूसरी जगह पे जाके गिरा के आना, दैट इज़ अ जॉब एलिमेंट. दीज आर द एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्टेन जॉब. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहती है कि हर जॉब को जब आप एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें तो फिर हर एलिमेंट को आपको ये देखना है कि इसको परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है. कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स तो इसमें हम नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनसे आपको थकावट या फटीग महसूस हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी आउटपुट कम हो जाएगी, टाइम शायद आप उतना ही ले रहे होंगे लेकिन काम उतना नहीं कर पा रहे होंगे. And then the third point is very important because it changed the dimension of management sciences or a management as a concept suddenly, because now scientific management as propounded by F.W. Taylor said that there must be an economic incentive for the workers. ये जो बोनस का वर्ड आप सुनते हो, this may not be exactly the word which F.W. Taylor used, but he said that if somebody can do a work on a faster pace than the normal or average pace of all the other workers, then that worker must be compensated. यानी कि अगर आप किसी को कोई काम असाइन करते हो और उसको एक डेडलाइन देते हो और वो डेडलाइन से पहले काम के मेयार पे कोई हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, काम मेयारी हो, इक्विवेलेंट हो टू द रिक्वायरमेंट्स जो हमने उसको दी थी,
So if that person is able to complete that work in a more than the normal time, तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. बट इफ दैट पर्सन इज एबल टू कंप्लीट दैट वर्क लेस देन दी नॉर्मल और एवरेज टाइम, तो फिर उसको हमें शाबाशी देनी चाहिए, उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए. और मोटिवेशन के लिए कई किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक भी है. माने कि आप एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक की अगर डेफिनेशंस में जाओगे तो हम उसको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी कह सकते हैं. कि हम उसे कोई बोनस दे दें, वो पैसों की शक्ल में हो सकता है, वो किसी बोनस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हम उसको शाबाश दे दें, कोई सर्टिफिकेट दे दें, कोई लेटर दे दें. तो ये कई किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, बट उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा. और आप जब उसको इंसेंटिव दोगे, इन तीन चीज़ों में जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी, कौन सी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ. पहला कि वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड मेक श्योर दैट द पर्सन हैज़ द राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि उसके पास काम करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट पूरे हैं, औजार पूरे हैं. नंबर टू, वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग एवरी जॉब. हर जॉब के एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड हो और उन एलिमेंट्स को करने के जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो वही होने चाहिए जो सबके लिए. और फिर अगर फिर भी कोई बाकी सब के मुकाबले में अच्छा काम और जल्दी काम मुकम्मल करता है तो फिर उसको इंसेंटिव भी देना है. टेलर ने जो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एंड दीज आर नोन एज द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो पहला प्रिंसिपल क्या है देखते हैं. डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क which will replace the old rule of thumb method. Old rule of thumb क्या है? Rule of thumb क्या है कि जी ऐसा कर लें, हम तो ऐसा ही करना आता है. This is how we used to do work. This is how मैंने काम सीखा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल दिया कि जी शवल को यूज़ करके हमने कोल को पिक किया और एक व्हील बैरो में डाला और दूसरी जगह छोड़ के आए. अब अगर आप व्हील बैरो को उठाते वक्त बहुत हाइट से पिक करेंगे तो हो सकता है लोड गिर जाए या आपको ज़्यादा लोड फील हो. बिल्कुल नीचे करके आप व्हील बैरो उठाएंगे तो आपकी कमर पे प्रेशर आएगा. उस फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द जॉब एलिमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी जॉब, एंड देन विद इन दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द साइंटिफिक वे, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच एंड एवरी जॉब एलिमेंट टू रिप्लेस व्हाट, द ओल्ड रूल ऑफ थंब. यानी कि जो पुराने रूल्स चले आ रहे हैं हो सकता है वो अच्छे हों, ये नहीं उसने कहा कि बुरे होंगे, सारे बुरे होते हैं जो पुराने रूल्स या स्किल्स आपने सीखे होंगे, बट देन देयर मस्ट बी सम बेटर वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. तो द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट आइडेंटिफाई द जॉब एलिमेंट्स, स्टडी दोज जॉब एलिमेंट्स, एंड देन आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ working on those or completing those job elements such that the old rule of thumbs can be replaced. Number 2, scientifically select and then train and teach and develop the workers. के एक प्रॉपर मेथड एंड साइंटिफिकली का यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रॉपर स्टेप्स आउटलाइंड प्रॉपर मेथड के साथ आप अपने वर्कर्स को सिलेक्ट करो, उनको ट्रेन करो, टीच करो और फिर डेवलप करो. अब ये 4 वर्ड्स जो हैं इन चारों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है. सिलेक्शन क्या है? आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, आपने उनमें से कहा कि जी ये जो वर्कर्स हैं ये मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, सो मैं इनको जो है थोड़ा सा जो वेट या सामान पिक करने का या लोड पिक करने का काम है इन पे लगा देता हूँ. सिलेक्शन हो गई. सिलेक्शन के बाद क्या करोगे आप? देन कम्स ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग इज व्हाट,
इट कैन बी एन ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आपने उनको जब हायर किया, हो सकता है उन्होंने जिस जॉब के लिए आपने हायर किया उन्होंने कुछ सीखी हो, कुछ ने ना सीखी हो, या जिन्होंने सीखी हो उनको मुकम्मल ना आती हो, और ये भी हो सकता है दैट दे might not be able to do it in a way which you require them to do. क्योंकि now you have replaced the old rule of thumbs by some specific scientific processes. वही व्हील बैरो का उठाने का सही स्टेप, सही मेथड अब आपने आइडेंटिफाई किया है। आप चाहते हैं कि लोग अब उसको सीखें और फिर उसको अप्लाई करें। तो हो सकता है कि आपके पास जो पहले लोग आए हों, दे may not be able to do it in the same way because उन्होंने किसी और तरह सीखा हो। So then whenever you select someone, you need to first give that person some kind of training, and that is something which we will study in detail in human resource management as a process also. आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो लोग आपको पहले सिलेक्ट करते हैं based on certain criteria, maybe your education, maybe your skills, and then hire करने के बाद आपको वो किसी ना किस्म की आपको बेसिक ट्रेनिंग्स देते हैं। They give you basic trainings. And why they want to give you basic trainings? Because they want you to learn the things as they are being done in the organization. वो आपसे ये चाहते हैं कि उस तरह काम हो जैसा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। तो क्या होगा, जब सब एक जैसा काम करेंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे, तो फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। सो सिलेक्ट कर लिया हमने उनको ट्रेनिंग दे दी। अब ट्रेनिंग के साथ साथ देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ टीचिंग ऑल्सो। अब टीचिंग का यहाँ पे मतलब कैन बी टेकन इन एनी वेज। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कि आप उनको थोड़ा बहुत और स्किल्स भी सिखाओ जो उस जॉब से ज़्यादा रेलिवेंट हो। इट कैन बी वन काइंड ऑफ टीचिंग। इट कैन बी अ टीचिंग कि आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाए जाएं आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आपको फिर इस जॉब से किसी बेहतर जॉब पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव किया जा सके, या आपको ऐसे स्किल्स सिखाए जाएं कि जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में से जाएं कभी भी, तो जब आप बाहर जाएं तो आपके वो स्किल्स काम आए। इस चीज को हम मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ओडी कहते हैं, कि आपको ऐसा डेवलप किया जाए कि आप जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएं तो आपके ये स्किल्स आपके काम आए। और यही चौथा कंपोनेंट है जब उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की कि देयर मस्ट बी सिलेक्शन, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ताकि एक वर्कर जो है सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, पूरी ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी और फिर उसके बाद के करियर के लिए भी उसके लिए ये स्किल्स जो है वो बेनिफिशियल हो। थर्ड पॉइंट इज दैट हार्टली यानी खुले दिल से कोऑपरेट विद द वर्कर्स so as to ensure that all the work is done in accordance with the principles of the science that has been developed. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि whenever you want someone कि वो पुराने रूल ऑफ थम्स जो है, मैकेनिज्म्स ऑफ डूइंग थिंग्स जो उसको पहले से आते थे, जो उसने हमेशा से सीखे थे, उनको रिप्लेस करके तो नए मेथड्स को पिक करे। सो जब भी आप चाहेंगे कि वो नए मेथड्स को पिक करे तो हो सकता है वो शुरू में कुछ गलतियां करे, वो कंफ्यूज भी हो सकता है, वो उसको प्रॉब्लमेटिक भी फील कर सकता है अपने लिए। तो आपका एज अ मैनेजर रोल क्या होगा? योर रोल वुड बी दैट यू शुड हार्टली, ओपनली, विद वेलकमिंग वे उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको फैसिलिटेट करो कि वो नए स्किल्स जो ज़रा साइंटिफिक हैं, जो मे बी थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है, जो कि उसके ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स से डिफरेंट हैं, उसको वो सीख सके, प्रैक्टिस कर सके और फिर एनफोर्स हो सके
उन रूल्स को कर सके ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, और जब उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी देन ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। पॉइंट नंबर 4, डिवाइड वर्क and responsibility almost equally between management and workers. Management takes over all work for which it is better fitted than the workers. अब यहाँ पे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने फर्स्ट टाइम ये कैटेगराइजेशन भी प्रेजेंट की that workers and managers are different, यानी कि टास्क दोनों में डिवाइड जो होनी है वो इक्वली करो। ये नहीं है कि मैनेजर्स जो हैं वो सारा दिन फारग बैठे रहें, वर्कर्स काम करते रहें, या वर्कर सारा दिन जो है वो कोई काम ना करे, मैनेजर जो है वो अपना काम भी करे और फिर जब देखे कि काम नहीं हो रहा तो वो वर्कर्स के साथ भी जाके लग जाए। बुरा नहीं है इसमें, बट दैट मस्ट नॉट बी अ हैबिट। ताकि एक प्रोसेस हो जिसमें वर्कर्स अपना काम मुकम्मल करें, मैनेजर्स अपना काम मुकम्मल करें। तो ये तो कहा कि टास्क की जो डिवीजन है वो बराबर होनी चाहिए। बराबर होने का मकसद मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूं कि यहाँ पे मकसद क्या था इस बात को कहने का, दैट इज दैट व्हेन यू डिवाइड द टास्क मस्ट बी डिवाइडेड इन अ वे दैट एवरीवन फील्स दैट एवरीवन अदर इज डूइंग हिज पार्ट और हर पार्ट एंड आई एम डूइंग माय पार्ट, ताकि मुझे लगे कि मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा हूं, वो उसका जो काम है वो सही कर रहा है, सही टाइम दे रहा है, वो भी काम कर रहा है। बट अगेन मैनेजर को कैडर में कौन लोग चाहेंगे? हु विल बी द मैनेजर हु इज बेस्ट फिटेड फॉर दैट जॉब ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एवरीवन। इस कहने का मकसद यहां पे था कि नॉट एवरीवन कैन बी अ मैनेजर एंड अ मैनेजर कैन ओनली बी द वन who is best fitted for that kind of responsibility. Another way of looking the same thing is that workers can be a part of management. Later on they can be promoted. So in short, it's a kind of way of saying that everyone should play his or her part in the organization. The task should be divided, clarified, noted down, mentioned to each and everybody that you are a manager, you are supposed to do these things. You are a worker, you are supposed to do these kind of tasks. और ये आपका जॉब है, ये इनका जॉब है. And then everyone should be seen to be contributing towards it. And then manager should be the one who is best fitted for that job. And obviously उसके लिए फिर कुछ क्राइटेरियंस टफर हो जाते हैं, वर्कर के लिए कुछ और क्राइटेरियंस हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो और हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में मिलती है, दैट इज फ्रॉम फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा न्यू डायमेंशन भी इंट्रोड्यूस किया. एंड वी कैन सी फ्रॉम द स्लाइड दैट दे फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू द रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन. काम तो ऑलमोस्ट वही किया. क्या फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू ये कहा दैट वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. अब आप जब कोई सही मेथड आइडेंटिफाई करोगे किसी जॉब को परफॉर्म करने का, तो फिर जो वेस्टेड मोशंस हैं, जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, उनको आप एलिमिनेट करोगे. बट यहां पे भी और थोड़ा सा पहले भी मैंने एक वर्ड यूज किया विच इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. यू सी, प्रोडक्टिविटी इज अ रेशो बिटवीन आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड एंड इनपुट्स कंज्यूम्ड. प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. यानी हम कितने इनपुट्स कंज्यूम करें तो हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम दिन में 100 बॉक्सेस, कोई भी कार्टन्स हैं लकड़ी के, वो बनाने का हमारा काम है, तो हम एक दिन में अगर 100 बॉक्सेस बनाते हैं जो कि हमारी आउटपुट है, और उसके लिए हमने 10 वर्कर्स को लगाया हुआ है,
तो अंदाजन दैट वुड बी आवर इनपुट. सो अप्रोक्सीमेटली अंदाजन हमारा आउटपुट क्या है, विच इज 100 बॉक्सेस डिवाइडेड बाय इनपुट विच इज 10 वर्कर्स और वर्क आवर्स. सो अगर वर्कर आवर्स में हम बात करेंगे तो इट मे बी डिफरेंट, बट लेट्स से अगर 10 वर्कर्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, सो दैट विल बी ऑब्वियसली 10 बॉक्सेस पर वर्कर. तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है कि हर वर्कर जो है वो 10 बॉक्सेस बना रहा है और 10 मिलके जो है वो 100 बना रहे हैं. सो अगर हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने यह कहा that we must be able to eliminate wasted motions. हमें unnecessary motions, unnecessary steps eliminate करने पड़ेंगे. और जब हम unnecessary चीज़ें निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे वर्कर की इनपुट्स बढ़ जाएगी. जब इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ जाएगी. और जब इनपुट्स आवर्स में, तो हम हो सकता है उन्हीं घंटों के अंदर, पहले हम 10 आवर्स में 100 बॉक्सेस बना रहे थे, अब हो सकता है हम 10 आवर्स में 120 बॉक्सेस बनाना शुरू कर दें. तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि टाइम हम उतना ही ले रहे हैं, लेकिन अब हमने वेस्टेड मोशंस निकाल दिए हैं, अननेसेसरी स्टेप्स निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से हम उसी टाइम में ज़्यादा बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज that we need to be able to increase worker productivity. How come? By removing or eliminating the wasted motions, the unnecessary steps, the unnecessary motions. Next point is that they developed microchronometer. ये microchronometer क्या है? It's basically a kind of a time watch or stopwatch जिसमें आप माइक्रो सेकेंड्स तक की रीडिंग्स ले सकते हैं. सो दे वांटेड प्रिसिशन. उन्होंने कहा कि हम टाइम कैलकुलेशंस में, बिकॉज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा कहीं से और आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ही यूज अ स्टॉप वॉच टू मॉनिटर एंड मेजर द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी जॉब एंड देयर एलिमेंट्स. तो स्टॉप वॉच तो उसने भी यूज की थी, लेकिन he may not be measuring in that much precision. तो हम माइक्रोन्स तक चले गए, which is raised to power -6, कि हम 1 सेकेंड के भी 10 raised to power 6 सेकेंड्स में देख रहे हैं कि जी इतना माइन्यूटली जाके उसने देखना शुरू कर दिया. सो दे डेवलप्ड अ माइक्रो क्रोनोमीटर कि जिसमें उन्होंने सेकेंड से भी कम यूनिट्स में टाइम की कैलकुलेशन देखनी शुरू की. और वो किस लिए उन्होंने शुरू की? बिकॉज दे वांटेड टू ऑप्टिमाइज वर्क परफॉर्मेंस बाय मेजरिंग द टाइम वर्कर टेक्स. सो हर वर्कर जो मोशन करता है, जो स्टेप्स परफॉर्म करता है कोई भी काम करने के लिए, उसको उन्होंने मेजर किया सेकेंड से भी कम टाइम की लिमिट तक थ्रू अ माइक्रो क्रोनोमीटर. एंड दे वांटेड टू डू व्हाट? ऑप्टिमाइजिंग कहते हैं बेस्ट solution ढूंढना. So they wanted to measure, and they really rather measured the time taken by each and every worker rather to motion level, so that they can optimize the overall worker performance, ताकि वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके. So you see, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें पहले एक डेफिनेशन सिर्फ ये थी कि लोगों को ऐसे तरीके से मैनेज किया जाए कि हम उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीवमेंट ले लें या उनको हम इन्वॉल्व कर सकें. सो इट वाज देयर, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड टू इन्वॉल्व द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, एंड दिस एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी. दैट वी वर मॉनिटरिंग द टाइम and we were studying it with relation to the motions, कि जो वो motions perform करते हैं उसमें वो कितना time लेते हैं. And that was again, this is all about optimizing the workers' performance. Another contributor to this one is Henry Gantt.
And the chart which you are looking at your screens is called the Gantt chart. अब ये जो Gantt chart है जो आपकी स्क्रीन्स पे आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर आप टॉप रो में देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ वीक्स में टाइम लिखा हुआ है. सो इसमें किसी टाइम स्केल को हम यूज करते हैं. दैट कैन बी वीक्स, दैट कैन बी मंथ्स, दैट कैन बी ईयर और दैट कैन बी डेज, सो आवर्स. सो टाइम स्केल ऊपर आपको टॉप रो में और लोअर रो में नजर आ रहा होगा, बॉटम रो में. और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है उसमें नजर आ रहा होगा दैट देयर आर सम एक्टिविटीज और टास्क्स व्हिच आर लिस्टेड. सो हम क्या करते हैं, टास्क क्या है? टास्क कैन बी द जॉब एलिमेंट्स ऑल्सो, सेम चीज है. सो हम एक जॉब को उसके डिफरेंट एलिमेंट्स में या स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसको करने के लिए क्या क्या काम कर, कितना टाइम लगेगा. अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है और उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं तो हमने स्टेजेस को या जो टास्क हैं उनको लिख दिया और बार से हम मेंशन करी जा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टास्क है, सच एज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरव्यू एंड सिलेक्ट आर्किटेक्चरल फर्म और दैट मस्ट बी फाइनलाइज इन अ ड्यूरेशन. वो रेड बार आपको दिखा रही है कि वो 2 वीक्स तक जा रहा है. तो ये चार्ट आपको ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी, एक चीज. दूसरा आपको ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी के साथ या किसके खत्म होने पे आप दूसरी एक्टिविटी या टास्क को शुरू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टास्क है विच इज होल्ड वीकली प्लानिंग मीटिंग्स विद आर्किटेक्ट्स, लेकिन ये शुरू कब हो रहा है? 3rd वीक से, यानी जब आप फर्स्ट 2 वीक्स में जो आपका काम था विच वॉज द सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चरल फर्म वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये टास्क शुरू होगी. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, इट्स अ ग्राफिकल मेथड. ये एक आपको ग्राफिकली किसी फिगर्स में किसी बार के थ्रू आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा होता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले शुरू हो रही है, कौन सी एक्टिविटी बाद में शुरू हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज हम एक दूसरे के साथ साथ चला सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी हम उसको शुरू कर सकते हैं जब पहली एक्टिविटी हमने या टास्क कंप्लीट कर ली हो. सो Gantt basically developed a Gantt chart which is very famous, even it is used to these days, whereby we want to do some graphical representation of activity and durations. कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होंगी, एंड वेदर दीज एक्टिविटीज कैन बी कंप्लीटेड इन अ सीक्वेंस और दे कैन बी कंप्लीटेड इन पैरेलल. कि एक दूसरे के ख़त्म होने पे हम दूसरा शुरू कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ साथ भी दोनों एक्टिविटीज रन हो सकती हैं. सो द क्वेश्चन इज whether we are using scientific management even today. Maybe 1911 के बाद उसमें हो सकता है ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हो. तो क्वेश्चन ये है कि हमने जो ये प्रिंसिपल्स पढ़े, और प्रिंसिपल्स क्या पढ़े मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूँ. हमने पढ़ा कि देयर वाज अ टाइम एंड मोशन स्टडी. किस लिए किया गया टाइम एंड मोशन स्टडी? Because we wanted to improve the productivity. Productivity क्या होता है? Output divided by input. कि कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट जनरेट की जाए. और क्या हम चाहते थे? We wanted to optimize workers performance. हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते थे. कैसे इम्प्रूव करना चाहते थे? थ्रू सिलेक्शन, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड डेवलपमेंट. और हमने उनको ये भी कहा कि विल बी हैविंग अ सर्टेन डिफरेंशिएशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स. इक्वली टास्क डिवाइड होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इंसेंटिव भी देंगे कि जो अच्छा काम करेगा, जल्दी काम करेगा, उसको इंसेंटिव भी देंगे. तो लेट्स सी क्या ये चीज़ें आज भी हम यूज़ करते हैं, क्या ये आज भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में शामिल हैं.
So how do today's manager use scientific management? Number one, use time and motion studies to increase productivity. जी हाँ, these days we still use time and motion studies, and maybe we may be calling it a different name such as work measurement, but still time and motion studies are done. ये कोई ये नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कोई आपके पीछे स्टॉप वॉच लेके चल पड़ेगा और आपको कहेगा कितना टाइम आपने ये किया, कितना टाइम ये किया. बट इन वन वे और अनदर, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, still some of the industries or sections of industry use one way or another some kind of time and motion studies, but they are still doing it for what reason? For increasing the productivity. और यही वो बेसिक रीजन थी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट जब प्रेजेंट हुआ था तो मेन रीजन थी. सो एक तो पहला ये पॉइंट प्रूव हुआ दैट यस स्टिल the managers of today use scientific management. Number two, we always try to hire the best qualified employees. ये principle तो तब भी था that we want to select the best one for the best, who's most suitable for the job. तो आज हम इसको इसी तरह देखते हैं. आज भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको वो तब सिलेक्ट करेंगे जब वो समझेंगे that you are the most right person, you are the most qualified person for this job. So selecting the best one. So principle of scientific management, yes, it is still prevalent as far as the point number 2 says कि तब भी हम बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करने का सोचते थे और आज भी हम बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करने का सोचते हैं. नंबर 3, designing of an incentive system based on output. तो incentive system क्या है? आज भी even if you are working in your organization, if you plan to work in an organization, तो whenever you will be hired, they will tell you that you will be appraised, your appraisal will be done at every year, maybe in every June, ताकि हम ये देख सकें कि आपको जो हमने एक साल में काम दिया वो आपने कितना अच्छा और सही किया. और अगर आपने काम अच्छा किया होगा तो हो सकता है हम आपको आपकी सैलरी बढ़ा दें, हम आपके कोई बेनिफिट्स बढ़ा दें और हो सकता है हम आपको प्रमोशन दे दें. तो आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ना कोई इंसेंटिव सिस्टम है. ये इंसेंटिव ही है कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपको बताया जाता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको, आपकी अच्छी अप्रेजल होगी जब, तो फिर हम उस अप्रेजल की बेसिस के ऊपर आपको अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे. सो इन शॉर्ट, बाय दीज 3 points I can now say that yes, scientific management is still in use today. साइंटिफिक मैनेजमेंट आज भी इस्तेमाल हो रहा है एज अ कॉन्सेप्ट. नाम हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो, मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हो गया हो, बट यस द बेसिक प्रिंसिपल्स आर स्टिल इन प्लेस. आज भी हम जब किसी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी फॉर्मेट में टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं. आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा वर्क फोर्स आए, then we go through a certain selection procedure जहाँ पे हम best qualified person को select करने की कोशिश करते हैं. And if today even we require our workers or managers or other employees to be motivated, तो हम उनके लिए कोई ना कोई incentive plans जरूर रखते हैं. So that shows that yes, still managers are using scientific management as a concept. So then after scientific management, let's see what is the next thing. The next thing is the general administrative theories. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में सबसे पहली कंट्रीब्यूशन है हेनरी फयोल की. हेनरी फयोल बिलीव्ड दैट द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस.
अब let me now first clarify to you what is meant by organizational functions or functional units. You see, functional organs या functional units कहते हैं such as the different departments which are there in your organization, such as marketing department. It can be an HR department, it can be an accounting department, it can be a finance department, or it can be stores where you receive the supplies from your supplier. एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पे then you produce something. There may be a certain service delivery floor. बैंक का फ्लोर हो सकता है जहाँ पे कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. Then there must be some component where you store your products, and then कोई डिस्ट्रीब्यूशन का आपका मैकेनिज्म होगा, कोई कंपोनेंट होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई आफ्टर सेल सर्विस का आपका डिपार्टमेंट होगा. बट ये सारे तो डिपार्टमेंट्स हो गए. हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं. मैंने कहा मार्केटिंग एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, ये सब एक फंक्शन है. बट इन सब फंक्शंस के अलावा Henry Fayol believed that management is separate. Management is something which should be kept a little bit different. और मैनेजमेंट का क्या काम होगा? To look after, to oversee, to monitor the processes or all your function components. यानी तमाम डिपार्टमेंट्स को और उनके फंक्शंस को मॉनिटर करना मैनेजमेंट का काम है. सो मैनेजमेंट ओवरऑल एक अलग से कंपोनेंट होना चाहिए. सो देन ही डेवलप्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस. तो हेनरी फेयोल ने फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए जो वो समझता था कि इट्स मोस्ट सूटेड फॉर ऑल जनरल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट इज व्हाई वो जनरल प्रिंसिपल्स जो थे which Henry Fayol believed that are applicable generally for all kinds of organization are still in use, and that is why these theories are called general administrative theories. यानी जिनको generally आप apply कर सको for administration. Henry Fayol ने 14 principles present किए और ये 14 प्रिंसिपल्स बिलीव मी आज भी किसी ना किसी फॉर्म में हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एप्लीकेबल होती नजर आएंगी. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट वर्क मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. सो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. In short, everyone must know his or her responsibilities. जो भी बंदा है, whether he is a manager of top level, middle management or lower management or what you call as first line management, every manager must know his or her responsibilities, tasks, job descriptions. हर एक को पता हो कि मैंने क्या काम करना है और टाइम और जो काम है वो डिवाइडेड हो, डुप्लीकेशन ना हो. अगर एक बंदे को, एक पर्सन को आपने कोई काम असाइन किया है तो वो काम से वही कर रहा हो. देयर मस्ट नॉट बी सम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड, मस्ट बी गिवन टू डिफरेंट पीपल, एंड देन देयर मस्ट नॉट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और टास्क. पॉइंट नंबर 2, अथॉरिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए. समवन कि जो डिसाइड करे जब कोई चीज तो वो फाइनल कंसिडर हो, द अल्टीमेट वे और द अल्टीमेट पर्सन एट द टॉप. सो टॉप मैनेजमेंट तो ठीक है, बट टॉप मैनेजमेंट में भी देयर मस्ट बी समवन हु इज लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बट ही इज द मोस्ट सीनियर, द टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी. अथॉरिटी होनी चाहिए. और अनदर वे, आपको जो भी आप काम कर रहे हो, आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हो, आपके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. इसको आप इस तरह भी देख सकते हो.
और फिर आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब हो, फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू द ऑफिस एवरी डे एट एग्जैक्टली द स्टेटेड टाइम। अगर 8 बजे का टाइम है देन 8 बजे ऑफिस में पहुंचना और एग्जैक्टली जो आपका काम है उसको परफॉर्म करना, और फिर जो आपका टाइम है उस टाइम पे ही छुट्टी करना। दैट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और क्या है? दैट वट एवर टास्क इज असाइंड टू यू, यू डू इट with accuracy, you do it in the best of your effort. That is a discipline. अगर आपको कहा यह गया है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी काम नहीं करने, अननेसेसरी बातें नहीं करनी, मोबाइल फोन या एक्स्ट्रा की चीजें यूज नहीं करनी, दैट इज अ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन कहां से आ रहा है? डिसिप्लिन उस अथॉरिटी से आ रहा है या टॉप मैनेजमेंट से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहते हैं, जिसमें रूल्स आपको बताए जाते हैं कि रूल्स ये हैं, आपने इन चीज को फॉलो करना है, इस तरह करना है और ये काम नहीं करने हैं। सो देयर मस्ट बी सम डिसिप्लिन। और व्हेनेवर देयर विल बी डिसिप्लिन, तो क्या होगा? लोग अपने जो काम है उनमें लगे रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स या क्वारलिंग या एक दूसरे के इश्यूज पे बात करना खत्म होता जाता है, बिकॉज डिसिप्लिन इज देयर। और आपको पता होगा कि इफ आई डू समथिंग रॉन्ग आई विल बी पनिश्ड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है दैट देयर मस्ट बी वन बॉस फॉर यू। यानी कि अगर मैंने किसी को रिपोर्ट करना है, इफ आई एम अ फर्स्ट लाइन मैनेजर, देन आई बी वेरी मच एग्जैक्टली बी नोइंग दैट हु इज माय मिडिल मैनेजर या टॉप मिडिल मैनेजर या टॉप मैनेजर जिसको मैंने रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि मुझे 2 लोगों को रोज रिपोर्ट करनी है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, और फिर प्रॉब्लम्स होंगे। सो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज अ वन वेयर देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। वन, आई नो माई बॉस एंड दैट शुड बी अ वन बॉस। दैट बॉस विल बी आंसरेबल टू अनदर पर्सन जो उसका बॉस होगा। बट इफ आई एम रिपोर्टिंग टू मोर देन वन पर्सन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मीन्स वन, कमांड मीन्स whoever is commanding you, whoever is leading you. So unity of command means that in every organization, for every subordinate there must be one boss. Unity of direction. Point number 5, unity of direction. देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक obviously there must be different people who are working in the organization, so they must all be working on their individual works. There must not be any duplication of efforts, duplication of work नहीं होना चाहिए, हर एक अपना काम कर रहा हो. And when you say it's unity of direction, besides there must not be any duplication of work, everyone should be focused on whatever the task is assigned to him or her. So unity of direction means that the direction must be specified, it must be focused. और अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप के लोगों का फोकस एक चीज पे है. अगर आप इंडिविजुअली आपको कोई काम असाइन किया गया है तो सिर्फ आप वो काम कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. सो जब डायरेक्शन फिक्स्ड होगी, आइडेंटिफाइड होगी, फोकस्ड होगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना भी उतना ही आसान हो जाता है. पॉइंट नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर इंडिविजुअल का एक अपना इंटरेस्ट होता है. मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, व्हेन द मंथ कंप्लीट्स, आई विल बी गेटिंग सम सैलरी.
तो मेरा एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं अपना बाकी खर्चे करूंगा, दैट इज़ माई इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसका इंटरेस्ट हो सकता है एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करना, एक अच्छी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को देना। तो देयर मस्ट बी सम बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी मैं कह दूं कि नहीं मुझे सैलरी आप ना दें, मुझसे फ्री में काम लिया जाए। इट्स समथिंग कि जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉजिक हम कहेंगे। बट इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो इंडिविजुअल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अलाइंड होने चाहिए। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो वो मुझे मेरे अच्छे काम का कोई इंसेंटिव भी देगी, तो मेरी ग्रोथ भी होगी। सो माय ग्रोथ लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ लीड्स टू माय ग्रोथ ऑल्सो। सो मेरा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो इन लाइन होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए कि जिसमें मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं जानबूझ के कुछ ऐसे काम करने लग जाऊं जो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे ना हो, यानी अगर मुझे टीचिंग का काम दिया गया है और मैं क्लास में तो जाता हूं लेकिन पढ़ा के नहीं आता, या अगर मुझे कोई जॉब कोई टास्क दिया जाता है मैं वो सही तरीके से नहीं करता, तो क्या है कि मैं अपने इंडिविजुअल गोल्स को तो प्रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं मुझे सैलरी तो मिलेगी, लेकिन मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी, उसको सेट असाइड कर दिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबॉर्डिनेट्स जो काम करने वाले हों, जो वर्कर्स हों या जो भी हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देयर इंडिविजुअल गोल्स मस्ट बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की और इंडिविजुअल गोल्स की अलाइनमेंट होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स पेमेंट, पेमेंट अगेंस्ट द सर्विसेज विच यू हैव रेंडर्ड। अगर आपको कहीं हायर किया गया है या आप किसी वर्कर को हायर करते हो तो आप जो वो काम करेगा उसको आप उसका पे करोगे, दैट इज नॉर्मल, दैट हैपन्स एवरीवेयर। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि देन यू स्टार्ट आस्किंग दैट पर्सन फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क्स ऑल्सो। आपने उसको जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है दैट इज फ्रॉम 8 to 4, but then you ask that person to sit in the office and work till late night, 8 बजे शाम को, 7, 10, 9 बजे तक काम करवा रहे हो। So whenever you ask for that something extra, you see यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जब आपने उस बंदे को हायर किया, आपने जो उसको जॉब डिस्क्राइब की कि भाई तुम्हारे ये जॉब्स हैं जो तुमने परफॉर्म करना है, अगर उसमें 8 to 4 लिखा हुआ है तो फिर 8 to 4 है, अगर अनलिमिटेड टाइम है तो फिर तो और बात है। लेकिन whenever you will ask that person to do something extra or you want to compensate that person for some extra things or some wonderful efforts which that person has done, so फिर आप उसको remunerate करोगे, उसको compensate करोगे through some monetary compensation। Remuneration का मतलब है providing compensation for the services rendered। अब यहाँ पे we need to be clear कि सैलरी तो एक चीज़ अपनी जगह है, रिम्यूनरेशन एक्स्ट्रा के कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, जो एक्स्ट्रा काम किया उसका एक्स्ट्रा पे करो, या बेसिक बेनिफिट्स के बेस में भी आ सकता है, बेसिक सैलरी के कंपोनेंट में आ सकता है। बट व्हेनेवर यू आस्क समवन टू डू सम वर्क फॉर यू, you need to pay. That is what remuneration is all about. Point number 8, centralization. You see, organization में authority centralized होनी चाहिए. This is what Henry Fayol said. However, when we will be discussing some new theories, some new concept, तो हो सकता है ये उस वक्त आपको थोड़ा सा invalid लगे.
बट हेनरी फयोल ने ये कहा दैट अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, द फाइनल वर्डिक्ट लाइज विद समवन हु इज द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग कि द पावर लाइज विद समवन एट द टॉप, समवन विद द अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन है, आपने किसी भी चीज की अप्रूवल लेनी है, आपने कोई भी डिसीजन करना है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हेनरी फयोल सेड। सो आपको अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा, अपने बॉस से पूछना पड़ेगा, वो अपने बॉस से पूछेगा, वो उससे ऊपर वाले बॉस से पूछेगा। सो फाइनली ये रिक्वेस्ट होती होती ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट में किसी ऐसे बंदे के पास पहुंचेगी जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। वो उसकी अप्रूवल देगा, फिर अप्रूवल उसी स्टेज से आपके पास आएगी, आपको फंड्स एलोकेट होंगे या आपको इजाजत मिल जाएगी और आप वो काम परफॉर्म करेंगे। सो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम कि डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल सेंट्रलाइज्ड होती है। एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, एंड यू नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम देयर। पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन्स। स्केलर चेन्स का मतलब है देयर मस्ट बी सम हायरार्की, देयर मस्ट बी सम चेन, everyone must be knowing that whom he or she is reporting to. So कोई हायरार्की होनी चाहिए, टॉप, मिडल, लोअर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, नॉन मैनेजरियल स्टाफ, कोई हायरार्की हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए ताकि ये पता रहे कि टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग हैं और उनका क्या रोल है। रिमेंबर, टॉप मैनेजमेंट का काम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देना है ऑर्गेनाइजेशन को। मिडिल मैनेजर का काम फैसिलिटेटर का है, उसने फैसिलिटेट करना है, उसने लाइजन करना है। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है उसने कोऑर्डिनेट करना है नॉन मैनेजरियल वर्कर्स को और वर्कफोर्स को। सो देयर मस्ट बी अ चेन, देयर मस्ट बी सम हायरार्की, एंड अगेन देयर मस्ट बी हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ पीपल। और पीपल जो लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस हायरार्की में जो हैं, दे आर देयर फॉर अ सर्टेन डिफाइंड टास्क। हर एक का कोई ना कोई रोल है, एंड अगेन देयर मस्ट नॉट बी सम डुप्लीकेशन। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स दैट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी सम वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे मैंने शुरू में कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सो ऑर्डर मीन्स द सेम थिंग इन वन वे और अनदर। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी चीज़ें नॉट अलाउड हैं, और एक ऑर्डर होना चाहिए। अब ऑर्डर की थोड़ी सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो फयोल ने और फिर बाकी लोगों ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, फिजिकल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर क्या है? दैट इफ वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बात कर रहा हूँ मैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब नीटली प्लेस्ड होने चाहिए अपनी जगहों पे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स ऑन एन असेंबली लाइन, उनका एक सीक्वेंस होगा। आपके ऑफिस की बात कर रहे हैं तो चीज़ें अपनी जगहों पे होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फिजिकल ऑर्डर कि इक्विपमेंट, फिक्सचर, फर्नीचर, दे मस्ट बी इन देयर राइट प्लेसेस। और फिर आता है सोशल ऑर्डर, जिसकी मैं इनिशियली बात कर रहा था कि हर बंदा अपनी जगह पे अपना काम कर रहा हो, दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना कर रहा हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हो, कोऑपरेशन हो, लोगों की आपस में एक दूसरे से झगड़े ना हो, इनफॉर्मल ग्रुप्स ना हो, मोटिवेशन हो, सब में मिलजुल के काम कर रहे हो, एज अ टीम काम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट है सोशली,
जहां पे लोग सोशल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्रॉम सोशल ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू. Equity means that whatever the rules and regulations are, they are done, they are being designed in a manner which is suitable for all. Meaning कि हमने किसी के साथ बायस नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि यार ये जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है दे बिलोंग टू वेरी लो क्लास, तो हम इनके साथ इनको और कम सैलरी दें, और जो अच्छे हैं हमारे जानने वाले हैं उनको हम जो है प्रायोरिटी दें. इक्विटी ऑल्सो कम्स व्हेन इट्स अबाउट प्रमोशन और गिविंग इंसेंटिव्स. अगर हम किसी को इंसेंटिव दे रहे हैं देन वी मस्ट बी श्योर कि हमने इसको सही वजह से इंसेंटिव दिया है. ही मस्ट नॉट बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हो सकता है कि मेरा फ्रेंड भी हो, बट लाजमी नहीं है कि मेरे प्रमोशन उसी को मिलेगी यू विल बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो देयर मस्ट बी इक्विटी. एक अच्छा जजमेंटल एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे जज किया जाए आपको परफॉर्मेंस पे, और रूल्स एंड रेगुलेशन फिर सबके लिए एक जैसे हों. रूल्स मस्ट बी फॉर ऑल एंड एवरीवन एंड दे मस्ट बी अप्लाइड इन अ सेम वे. किसी नो वन इज बियॉन्ड लॉ. दैट इज व्हाट इक्विटी सेज. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स. You see, if we say to someone that तुम ये काम सही नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी फौरन निकाल दूंगा. आई डोंट थिंक कि मतलब अगर वो काम सही करना भी चाहता है तो वो शायद सही ना कर सके. बट दिस पॉइंट इज सेइंग इज दैट वी नीड टू गिव अवर वर्कर्स और मैनेजर्स कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट? के मिस्टेक्स तो छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, बट यू मस्ट बी वर्किंग विद एफर्ट विद वन थिंग इन माइंड दैट योर जॉब विद अस इज सिक्योर्ड. तुम जब तक अच्छा काम करोगे, जब तक सही काम करोगे, जब तक तमाम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो रखोगे तो तुम्हारी जॉब सिक्योर है. सो एज फार एज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज कंसर्न्ड, अगर हमने उसको साल के लिए हायर किया है तो फिर साल तक जब तक वो कोई मेजर इशू क्रिएट नहीं करता, कोई ऐसा रूल नहीं तोड़ता जो के तोड़ने पे वाकई सजा जॉब से निकालना हो, तो फिर हमें उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि टिल द टाइम यू डू योर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट द रिक्वायरमेंट वाज, देन योर टेन्योर विद अस इज स्टेबल. हम तुम्हें फौरी तौर पे निकालेंगे नहीं. तुम्हारा टेन्योर जो है वो सिक्योर है. तुम जितने अरसा यहाँ तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस वक्त तक तुम्हारा टेन्योर जो है वो सिक्योर है, पक्का है, बिकॉज टिल द टाइम यू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट द जॉब वाज असाइन्ड टू यू. पॉइंट नंबर 13 इज इनिशिएटिव. देखें, इनिशिएटिव मीन्स दैट इट मे हैपन कि अगर हम हर वक्त यही सोचें कि जी हम तो वही काम करेंगे जो हमें कहा गया है, सो इट डजंट मीन कि आप दूसरों के कामों में दखल दें, बट द पॉइंट इज दैट यू मस्ट ऑलवेज बी लुकिंग फॉर कि इस काम में हम क्या एक्स्ट्रा करें तो ये काम जो है वो और बेहतर हो सकता है. सो यू शुड बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव्स. और जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स लेने लग जाता है तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं. सो इनिशिएटिव इज वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इफ यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. व्हाई? बिकॉज इफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज योर ग्रोथ विल बी देयर ऑल्सो. सो फॉर दैट यू नीड व्हाट? You need to take some initiatives, और इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपकी ग्रोथ भी होगी. एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है, कॉर्प्स का मतलब है ग्रुप और फौज, और स्पिरिट मीन्स स्पिरिट. सो स्पिरिट ऑफ द आर्मी, स्पिरिट ऑफ द workforce, spirit of the employees, meaning is another way for motivation.
that your workforce, your corps should be motivated. They must have a spirit. So everyone should be motivated. This is what the point number 14 says, that the whole organization, which consists of workers, managers, and non-managerial staff, and each and everyone or support staff, they must be motivated, because when they will be motivated, they will work wholeheartedly. और जब वो और मेहनत के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क के साथ काम करेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. So these are the basic 14 principles of Henry Fayol. Alright, dear students, with this we conclude our third lecture. Today, remember, we have discussed scientific management and we have discussed general administrative theories, and within that we have discussed at the end till the point the 14th principles of Henry Fayol. Till the next time, take care. It's Allah Hafiz.